بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول کیلنڈر کلر بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کیلنڈر کلر بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور گہری الجھنوں کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بار بار رکتا، چونک کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتا، اور پھر اچانک وہ چونک کر رک گیا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری تھی، اور پھر دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے۔ باس، وہ ڈاکٹر راشیل نہیں ہے۔ اس کے میک اپ میں مقامی انٹیلیجنس بوشارو کا ایجنٹ ہے۔ میں نے اسے ختم کر دیا ہے، نوجوان نے کہا۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا شک تھا، کیونکہ جس انداز میں اس کی نگرانی ہو رہی تھی اس سے معاملہ مشکوک نظر آتا تھا۔ بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بوشارو کو ہمارے متعلق علم ہو گیا ہے، تبھی ہمارے لیے یہ جال بچھایا گیا تھا، باس نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اور باس، ایک اور بری خبر بھی ہے، لیبارٹی میں جانے والے ہمارے چاروں ایجنٹ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، نوجوان نے کہا۔ اوہ، مگر کیسے؟ باس بری طرح چونک پڑا۔ وہ تمام مراحل کامیابی سے طے کر گئے تھے باس، مگر چیکنگ لفٹ میں پکڑے گئے۔ پھر لیبارٹی کے سیکیورٹی باس نمبر 1 نے انہیں گولی مار دی۔ ان کی آنکھوں میں فٹ ٹیلی لینس کی وجہ سے ہم تمام صورتحال سے باخبر رہے، نوجوان نے جواب دیا۔ اوہ، کیا انہوں نے ان سے پوچھ گچھ بھی کی تھی یا وہ کسی تصادم میں ہلاک ہو گئے ہیں؟ نہیں باس، انہیں باقاعدہ ہائیڈرو تھراپی سے چیک کیا گیا تھا، مگر چونکہ آپ کے حکم پر ان کی برین واشنگ کر کے سیٹ کر دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں اپنے آپ کو کیلنڈر کلر ہی ظاہر کیا اور انہیں کیلنڈر کلر سمجھ کر ختم کر دیا گیا، نوجوان نے جواب دیا۔ اوہ، اچھا ہوا کہ آخری لمحوں میں ہم نے ابھی خود جانے کا ارادہ بدل دیا۔ بہرحال اس سے ایک فائدہ ہو گیا، نمبر 2، کہ اب بوشارو مطمئن ہو جائے گی کہ کیلنڈر کلر ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح ہمیں کام کرنے میں آسانی رہے گی، کیلنڈر کلر نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے باس، مگر ایک اور اطلاع ہے، شاید وہ اہم ہو۔ ہمارے آدمیوں کے ساتھ 3 ایشیائی بھی پکڑے گئے تھے، نمبر 2 نے کہا۔ ایشیائی؟ مگر وہ کون تھے؟ باس چونک کر کھڑا ہو گیا۔ معلوم نہیں جناب، ہمارے آدمیوں کے مر جانے کی وجہ سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایشیائی کون تھے اور کیوں جعلی طور پر اندر داخل ہوئے تھے، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور ہی سلسلہ ہو۔ اب بہرحال ہمیں اپنے مشن پر توجہ دینی چاہیے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح سے اصل ڈاکٹر راشیل کو لیبارٹی سے باہر نکالا جائے، کیلنڈر کلر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں تو اس کی ایک ہی صورت آتی ہے کہ ہم بوشارو کے کسی اعلیٰ افسر کی جگہ لے لیں اور پھر اس کے ذریعے ڈاکٹر راشیل کو باہر نکالا جائے، نمبر 2 نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، بہت اچھی ترکیب ہے، ونڈرفل آئیڈیا۔ اس طرح ہم اس چوہے کو بڑی آسانی سے بل سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اور باس، ہسپتال میں ایک شخص کو میں نے خود چیک کیا ہے، وہ ڈیلنگر ہے، بوشارو کا نمبر 3۔ میں ذاتی طور پر اسے جانتا ہوں، اس لیے میں نے اسے میک اپ میں بھی پہچان لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے چیک کر لیتے ہیں، باس نے کہا، اور پھر تیزی سے میز کی دراز کھول کر اس نے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ٹرانسمیٹر سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ چند لمحوں بعد ان آوازوں پر ایک مردانہ آواز غالب آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر باس نے نمبر 2 کی طرف بڑھا دیا۔ یس نمبر 3 سیکشن 2 اسپیکنگ، اوور۔ باس اسپیکنگ، اوور، نمبر 2 نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ فوراً مردانہ ہو گیا۔ کیا پوزیشن ہے؟ اوور، نمبر 2 نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سر، ہسپتال میں ہنگامی حالات ہیں، ڈاکٹر راشیل کی تلاش ہنگامی بنیادوں پر ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ لیبارٹی کا سیکیورٹی انچارج خود وہاں آ رہا ہے۔ اوور، کیا وہاں وہ آدمی ابھی تک موجود ہے جس کے سر کے بال سرخ ہیں اور دائیں آنکھ کے ساتھ ایک موٹا سا مسا ہے؟ اوور، یس باس، اس وقت تو وہ انچارج بنا ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ صرف ایک میل نرس کی حیثیت میں کام کر رہا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے،
इस आदमी को अगवा करके हेडक्वार्टर पहुंचा दो। ओवर। नंबर 2 ने हुक्म देते हुए कहा। बेहतर बॉस, क्या हम खुलकर सामने आ सकते हैं? ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं, ये काम खुफिया होना चाहिए। ओवर। नंबर 2 ने सख्त लहजे में कहा। ओके बॉस, ऐसा ही होगा। ओवर, जवाब दिया गया। ओवर एंड ऑल, नंबर 2 ने कहा और बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया। सेक्शन 2 इसे अगवा करने में कामयाब हो जाएगा, कैलेंडर किलर ने कहा। यस बॉस, हमारा सेक्शन इस काम में माहिर है। आपने देखा कि हमने कितनी कामयाबी से जाली डॉक्टर राशेल को अगवा कर लिया, हालांकि अस्पताल में बोशारों ने सख्त इकदाम कर रखे थे। नंबर 2 ने बड़े फ़खरिया लहजे में कहा। ठीक है, कैलेंडर किलर ने मुतमईन लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि नंबर 2 कुछ कहता, कमरे में तेज़ सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। सीटी की आवाज़ सुनते ही दोनों चौंक पड़े। बॉस ने तेज़ी से मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे सीटी की आवाज़ आना बंद हो गई और एक मर्दाना आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ कमरे की दीवारों में लगे हुए एक खुफिया माइक्रोफोन से निकल रही थी। नंबर 1, सेक्शन 1 स्पीकिंग। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। बॉस ने मेज़ पर लगे हुए बटन को दोबारा दबाया और फिर कहने लगा। यस चीफ बॉस स्पीकिंग। ओवर। बॉस, अभी अभी लेबॉर्ट्री के खुफिया गेट से एक वैन बाहर आई है जिसमें बिल्कुल इसी हुलिये का आदमी सवार है जो हमारा टारगेट है। ओवर। ओह, तुम्हारा मतलब है इस वैन में नवंबर सवार है? ओवर। चीफ बॉस ने चौंक कर कहा। इसके लहजे में बेपनाह जोश था। यस बॉस, मैंने इसे अच्छी तरह पहचान लिया है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। वो वैन कहाँ गई है? ओवर। चीफ बॉस ने तेज़ लहजे में कहा। नंबर 4 और 5 को मैंने इस वैन को चेक करने के अहकाम दिए हैं, वो इसके पीछे गए हैं। ओवर। नंबर 1 ने कहा। ओके, फ़ौरन इस वैन के मुतालिक मुझे रिपोर्ट करो कि वो कहाँ गई है और ख़ास तौर पर नवंबर को नज़र में रखो। ओवर। चीफ बॉस ने कहा। ओके बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, चीफ बॉस ने कहा और बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। चूहा खुद ही बिल से बाहर निकल आया है। नंबर 2, कैलेंडर किलर के लहजे में जोश नुमाया था। कुछ कहा नहीं जा सकता बॉस, हो सकता है पहले नकली डॉक्टर राशेल को अगवा करने के बाद इन्होंने ये चाल चली हो और किसी और डॉक्टर राशेल को बाहर निकाला हो। नंबर 2 ने कहा। ओह, इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। बहरहाल डेलिंगर से इस बारे में हमें सही मालूमात मिल सकती हैं, कैलेंडर किलर ने कहा और फिर से पहले कि नंबर 2 कोई जवाब देता, अचानक जू जू की आवाज़ें मेज़ पर रखे हुए छोटे ट्रांसमीटर से निकलने लगी। नंबर 2 ने चौंक कर इसका बटन दबा दिया। हेलो, नंबर 3 सेक्शन 2 स्पीकिंग। ओवर। दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी जिसे डेलिंगर के अगवा का हुक्म दिया गया था। यस, नंबर 2 स्पीकिंग। ओवर। बॉस, जिस आदमी को अगवा का हुक्म दिया गया है इसने अभी अभी एक फ़ोन कॉल रिसीव की है जिसमें बताया गया है कि लेबॉर्ट्री से असल डॉक्टर राशेल को अगवा कर लिया गया है। कुछ एशियाई इस सिलसिले में मुलव्वस बताए जाते हैं। इन्होंने लेबॉर्ट्री के सिक्योरिटी चीफ नंबर 1 का बेस बदलकर असली डॉक्टर राशेल को अगवा कर लिया है और वो किसी वैन में से ले उड़े हैं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो करो। ओवर। नंबर 2 ने जवाब दिया। ओके बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से मौजवाना लहजे में कहा गया। ओवर एंड ऑल, नंबर 2 ने कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया। ये एशियाई कौन है और कहाँ से टपक पड़े? फिर इन्होंने डॉक्टर राशेल को क्यों अगवा किया है? कैलेंडर किलर ने कुछ सोचते हुए कहा। फ़िलहाल तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर वो हमारी तरह इसे कत्ल करना चाहते तो लेबॉर्ट्री में भी कत्ल कर सकते थे। अगवा से इनका कोई और ही मकसद होगा। ठीक है, जो भी हो, हमें अपना मिशन मुकम्मल करना है। तुम तमाम सेक्शन को अलर्ट कर दो, कैलेंडर किलर ने फैसला कौन लहजे में कहा। ठीक है बॉस, नंबर 2 ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। वैगन जब शहर की हदूद में दाखिल हुई तो इमरान ने, जो टॉम के करीब बैठा हुआ था, अचानक इसे वैगन रोकने का हुक्म दिया और टॉम ने पूरी कुव्वत से ब्रेकें लगा दी और वैगन के टायर चीखते हुए सड़क की सतह पर जम से गए। टॉम, तुम टैक्सी पकड़कर वापस लेबॉर्ट्री में जाओ। इन दोनों बेहोश एशियाइयों को भी बोशारो हेडक्वार्टर पहुंचाने का इंतज़ाम करो। मुझे चलते हुए ख्याल नहीं आया, वो दोनों बेहद ख़तरनाक हैं। इमरान ने, जो नंबर 1 के मेकअप में था, इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सर, अगर आप कहें तो मैं यहीं से फ़ोन कर दूं? टॉम ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। टॉम, जो मैं कह रहा हूं वो करो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और टॉम तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। इसकी जगह इमरान ने संभाल ली और दूसरे लम्हे वैगन तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई।
डॉक्टर राशेल सफदर के साथ वैगन की दरमियानी सीट पर मौजूद था, जबकि सबसे आखिरी सीट पर कैप्टन शकील पड़ा हुआ था। जब टॉम के उतरने के बाद इमरान ने वैगन आगे बढ़ाई तो अचानक सफदर बोल पड़ा, हमारा ताकुब हो रहा है। इस बार वो अपने असल लहजे में बोला था, मुझे मालूम है सफदर, इसलिए मैंने टॉम से छुटकारा हासिल कर लिया है। इमरान ने भी अपना असल लहजे में जवाब दिया और सफदर के साथ बैठे हुए डॉक्टर राशेल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो कभी हैरत से सफदर को और कभी इमरान को देखता। हैरान होने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर राशेल, हम वही एशियाई हैं जिन्हें तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था। ओह मगर डॉक्टर राशेल के चेहरे पर खौफ के तासरात फैलते चले गए। मेरा ख्याल है अब मुझे होश में आ जाना चाहिए। अचानक पिछली सीटों से कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो उठकर बैठ गया। हाँ, मैंने इतनी कुव्वत से तो मुक्का नहीं मारा था कि तुम इसे तवील आराम का बहाना बना लो। अगर आप कहें तो मैं इससे कम कुव्वत के मुक्के से भी आपको तवील रुखसत का बहाना मुयस्सर कर सकता हूँ, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे इमरान ने इंतहाई तेज़ी से वैगन एक बाई रोड पर घुमा दी और फिर वो इस सड़क पर दौड़ाता चला गया। काफ़ी दूर आगे ये सड़क एक टूटे फूटे फार्म पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। इमरान ने वैगन इस फार्म की पेश पर जाकर रोकी और फिर तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। शकील, तुम जाकर पीछे आने वाले को इस वक्त तक रोको जब तक मैं तुम्हें इशारा ना कर दूं, इमरान ने कैप्टन शकील से कहा और कैप्टन शकील वैगन से उतरकर वापस इस सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। तुम आओ मेरे साथ जल्दी, इमरान ने डॉक्टर राशेल से मुखातिब होकर कहा और फिर सफदर और डॉक्टर राशेल इमरान के पीछे चलते हुए इस फार्म हाउस में दाखिल हो गए। डॉक्टर राशेल, हम तुम्हें कैलेंडर किलर से बचाना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ ताउन करो, इमरान ने कहा और फिर इसने तेज़ी से अपना मौजूदा मेकअप ख़त्म करना शुरू कर दिया। डॉक्टर राशेल ने कुछ नहीं कहा। वो खामोश खड़ा आंखें झपकाता रहा। सफदर ने भी अपना मेकअप ख़त्म कर दिया और वो सफ़ेद कोट उठाकर फेंक दिया। इमरान ने एक बार फिर अपना चपटा सा मेकअप बॉक्स निकाला और फिर इसके हाथ तेज़ी से मसरूफ़ हो गए। जब इसके हाथ रुके तो डॉक्टर राशेल बेहोश होते होते बचा, क्योंकि इसके सामने एक और डॉक्टर राशेल खड़ा था, हूबहू, सिर्फ लिबास का फ़र्क था। इधर आओ डॉक्टर राशेल, अब मैं अपना मेकअप तुम पर कर दूं, इस तरह तुम कैलेंडर किलर से महफूज हो जाओगे, इमरान ने कहा और फिर इसके पहले कि डॉक्टर राशेल इसकी तरफ बढ़ता वो खुद इसकी तरफ बढ़ा और एक बार फिर इसके हाथ बिजली किसी तेज़ी से हरकत में आ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राशेल इमरान के कालिब में ढल चुका था। फिर इमरान के कहने पर इन्होंने अपने लिबास भी बदल लिए। अब फार्म हाउस के इस कमरे में इमरान डॉक्टर राशेल के मेकअप में और डॉक्टर राशेल इमरान के मेकअप में मौजूद था। सफदर अपने असल चेहरे में था। मगर तुम हो कौन और क्यों ऐसा कर रहे हो, आखिरकार डॉक्टर राशेल ने दबे दबे लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात कर जवाब देता, अचानक कमरे का टूटा फूटा दरवाज़ा एक धमाके से उछलकर दूर जा गिरा और दो गैर मुल्की नौजवान अंदर आ गए। इनके हाथों में रिवॉल्वर चमक रहे थे। अपने हाथ उठा लो, इनमें से एक ने इंतहाई करख लहजे में कहा। इसकी नज़रें इमरान पर, जो डॉक्टर राशेल के मेकअप में था, पर जमी हुई थीं और सबसे पहले इमरान ने हाथ उठा लिए। इसके साथ ही सफदर और असल डॉक्टर राशेल ने भी हाथ उठा लिए। तुमने हमारे साथी का क्या किया? वो अभी तक सड़क की तरफ पहरा दे रहा है और हमें तुमसे मतलब भी नहीं है। हम सिर्फ इस गैर मुल्की को लेने आए हैं, नौजवान ने कहा। मुझे मगर क्यों? इमरान ने डॉक्टर राशेल के लहजे में हकलाते हुए कहा। वो सख्त खौफजदा मालूम हो रहा था। इसकी तलाशी लो जॉनी, नौजवान ने इमरान के बात का जवाब देने की बजाय अपने साथी से मुखातिब होकर कहा। इसका साथी रिवॉल्वर हिलाता तेज़ी से इनकी पुश्त पर आ गया और फिर चंद लम्हों बाद इसने कहा, इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तुम बाकी दो का ख्याल रखो। अगर ये ज़रा सी भी गलत हरकत करें तो गोली मार देना। और तुम डॉक्टर राशेल इधर आओ, देखो अगर तुमने कोई आवाज़ निकालने की कोशिश की तो यहीं ढेर कर दूंगा, नौजवान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इमरान ने मुड़कर सदर की तरफ देखा और आँख का एक गोशा दबा दिया और मखसूस इशारा किया और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इस नौजवान के साथ बढ़ गया। नौजवान दरवाजे से हट गया और फिर इमरान के पीछे ही बाहर निकल आया। नौजवान इमरान को लिए फार्म हाउस की पुश्त पर आया और फिर वो इसे खेतों के अंदर एक तंग से रास्ते पर लिए चला गया। इमरान समझ गया कि इन्होंने कैप्टन शकील को किस तरह चक्कर दिया होगा। वो सड़क की तरफ आने की बजाय चक्कर काटकर खेतों के अंदर से होकर आए थे। खेतों के तवील सिलसिले से निकलकर वो एक सड़क पर पहुंच गए। यहाँ एक स्याह रंग की कार मौजूद थी। ये वही कार थी जो इमरान ने लिबर्टी के सड़क से अपने ताक़ुब में देखी थी। फिर नौजवान के कहने पर इमरान कार में बैठ गया। नौजवान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। रिवॉल्वर अलबत्ता इसने इमरान के पहलू से लगा रखा था।
थोड़ी देर बाद खेतों में से नौजवान का साथी दौड़ता हुआ आया और तेजी से कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गया। क्या हुआ जॉनी? इमरान के साथ बैठे हुए नौजवान ने पूछा। सब ठीक है, इनमें से एक बेहद खतरनाक साबित हुआ और हो सकता था कि वो मुझे मार गिराता, मगर मैं इसे ऊंचा देकर निकल आया हूँ। मेरा वो रिवॉल्वर भी वहीं गिर गया है। ठीक है, हमें इनकी परवाह नहीं है, तुम इसे कवर करो, स्टीयरिंग पर बैठे हुए नौजवान ने कहा और पिछली नशिस्त पर बैठे हुए नौजवान ने रिवॉल्वर इसके हाथ से लेकर इसकी नाल इमरान की पुश्त से लगा दी और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। इमरान बड़े इत्मीनान से सीट की नशिस्त से टेक लगाए बैठा था। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गया था कि थोड़ी देर के बाद वो कैलेंडर किलर के सामने मौजूद होगा।